Good evening, students. Welcome back to the YouTube channel of ATS. So, as far as concerned of now, we have done the Parliament System of Government. ठीक है, जो important कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के चैप्टर थे वो हमने सारे किए. फिर उसके बाद में हमने सेकंड यूनिट में सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में आपने देखा हमने पार्लियामेंट कंप्लीट किया, फेडरल स्ट्रक्चर कंप्लीट किया. ठीक है, फिर उसके बाद में जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ डेज, पिछले 3-4 साल का मैं ट्रेंड देख रहा हूं, जैसा हर साल ऑन एन एवरेज एक पॉलिटिकल कमिटी से एक क्वेश्चन दे वुड आस्क यू. गॉट माई पॉइंट? दिस चैप्टर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू पार्लियामेंट, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट if you see from the exam point of view. Right, now we'll start parliamentary committee. Now what is basically a parliamentary committee? See, parliamentary committee is a committee of members of the parliament who are elected and appointed from the members of the house or the nominated by the speaker or the chairman. Ab the members either could be from Lok Sabha and they could be from the Rajya Sabha. They could be from both. Right, and the concept of this parliamentary committee originated in the British Parliament. So we have taken this parliamentary committee process from the British Parliament. The idea of the parliamentary committee we have taken from the British Parliament. Now these committees operate under the direction of the Speaker of the Lok Sabha and the Chairman of the Rajya Sabha. When it is related to the Lok Sabha, the concerning authority would be Lok Sabha Speaker. When it is related to Rajya Sabha, the concerning authority would be Rajya Sabha. And they present their findings and recommendations to the respective house. When these committees meet, they make a report and they submit to the respective houses. Now the parliamentary committee draw their authority from the constitution. Parliamentary committees draw their authority from the constitution, right? From article 105, powers, privilege, etc. of the house of the parliament and their members and the committees. So elaborately there is no mention about the committees, but the word committee is there in article 105. In detail there is no, there is nowhere in the constitution that is written that which kind of committees it would be. That committees are our, innovation into the parliamentary system. But in detail, the word committee is written into the article 105. So the source of the power for these committees, that comes from the constitution. Similarly, when we talk about article 118, each house of the parliament may make rules for the regulations subject to the provision for this constitution, its procedure and conduct of the business. So article 118 tells you that each house of the parliament make the rules and regulations, subject for the provisions. So how a house should be run, what are the business rules, how should be, the house should be conducted. ठीक है, what will be the its द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द डे. ठीक है, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, ये जो है सारी इस आर्टिकल 118 में. किसी भी हाउस को चलाने के लिए, किसी पार्लियामेंट को चलाने के लिए, तो एक कमिटीज होती हैं, बहुत सारी कमिटीज. वो कमिटीज जो हैं उनका अलग अलग वर्क है. किसी कमेटी का ये वर्क है, किसी कमेटी का ये वर्क है. तो वो जो है अब हम आगे देखेंगे. हाउ आर द पार्लियामेंट्री कमिटीज क्लासिफाइड इन इंडिया. इंडिया के अंदर जो है, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर कमिटीज किस तरह से क्लासिफाई की गई हैं बाय द नेचर ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी. दो काइंड की कमिटीज होती हैं. एक तो होती है स्टैंडिंग कमिटी, एक होती है एडॉक कमिटीज. ठीक है, स्टैंडिंग कमिटी और एडॉक कमिटी. स्टैंडिंग कमिटीज आर द परमानेंट कमिटीज. ये याद रखना है आपको. स्टैंडिंग कमिटीज आर द परमानेंट कमिटीज दैट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पार्लियामेंट टू डील विद द स्पेसिफिक एरिया ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन. पब्लिक पॉलिसी के एरिया से को डील करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन को डील करने के लिए पार्लियामेंट जो है वो इन कमिटीज का जो है वो गठन करती है, और ये परमानेंट इन नेचर होती हैं. ठीक है, दीज कमिटीज आर कंस्टिट्यूटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंटिन्यू अंटिल द एंड ऑफ द सेशन. ठीक है, ये जब भी एक सेशन स्टार्ट होता है उसके टाइम पे इनका फॉर्मेशन होता है, और ये कंटिन्यूअस होती है क्योंकि परमानेंट इन नेचर में है, तो ये कंटिन्यूअस होती है टिल द एंड ऑफ द सेशन. ठीक है, फिर उसके बाद में मैं आपको इंपॉर्टेंट कमिटीज के बारे में बात करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट होती है एस्टिमेट कमिटी. ठीक है, जिसके अंदर 30 मेंबर्स होते हैं. ठीक है, ऑल आर फ्रॉम द लोकसभा.
इसका टेन्योर होता है 1 साल। एक चीज याद रखनी है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा कि एस्टिमेट कमिटी में देर आर द मेंबर्स फ्रॉम बोथ हाउसेस। नो, एस्टिमेट कमिटी 30 मेंबर्स होते हैं। इलेक्ट कौन करता है? लोकसभा। लोकसभा के ही सारे मेंबर्स होंगे एस्टिमेट कमेटी में, ठीक है। इसका टेन्योर होता है 1 साल के लिए, ठीक है। सेम पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है जिसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर लोकसभा से, 7 मेंबर राज्यसभा से, जिसका टेन्योर 1 साल होता है, और इलेक्टेड फ्रॉम द 2 हाउसेस बोथ। टोटल पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, तो दोनों हाउसेस से लिए इसका भी टेन्योर 1 साल का होता है। सेम लाइक पब्लिक कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग, इसके अंदर भी 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा, इसका टेन्योर भी 1 साल का होता है। गॉट माई पॉइंट? दीज आर द इंपॉर्टेंट कमिटीज, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमिटी है एस्टिमेट, पब्लिक अकाउंट और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। अब एस्टिमेट कमेटी की बात करते हैं। देवर एस्टिमेट कमेटी का सेटअप हुआ 1950 के अंदर, एंड इट वर्क्स टू चेक द एनुअल बजट एस्टिमेट टू रिपोर्ट एफिशिएंसीज ऑफ द एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसको ये उसकी एफिशिएंसी को चेक करती है कि सरकार ने अगर कोई पॉलिसी बनाई है उसका ये एस्टिमेशन चेक करते हैं कि वेदर दिस पॉलिसी इज वर्किंग करेक्टली और नॉट, ठीक है। इट कंसिस्ट 30 मेंबर्स, लोकसभा इलेक्टेड देम फ्रॉम 1 ईयर, ठीक है। और जो रूलिंग पार्टी इलेक्ट्स द चेयरमैन, जो रूलिंग पार्टी होती है वो इलेक्ट करती है चेयरमैन को बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। एस्टिमेट कमेटी का चेयरमैन हमेशा कौन होता है? एस्टिमेट द रूलिंग पार्टी इलेक्ट्स द चेयरमैन बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नॉर्मली अपोजिशन लीडर होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो चुनता है इस एस्टिमेट कमेटी के चेयरमैन को। इतना आपको याद रखना है। 30 मेंबर होते हैं, 30 के 30 जो मेंबर हैं वो लोकसभा से होते हैं, ठीक है। 1950s के अंदर इसका जो है वो फॉर्मेशन हुआ था। इसका काम है जो एनुअल बजट एस्टिमेट होता है उसकी रिपोर्ट को ये चेक करते हैं, एफिशिएंसी कितना है इकोनॉमिक पॉलिसीज में, ठीक है। फिर उसके बाद होती है कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग। इसका सेटअप 1964 के अंदर हुआ। द वर्क ऑफ दिस कमिटी टू चेक रिपोर्ट्स ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पब्लिक अंडरटेकिंग ऑल्सो दे एनालाइज द रिपोर्ट्स ऑफ द कैग ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। जो कैग रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट रिपोर्ट रखता है उसको पार्लियामेंट में, उस रिपोर्ट को भी ये चेक करते हैं जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स, जैसे मान लो भेल है, उसके अंदर कैसा काम हो रहा है, सेल हो गया, गेल हो गया, ठीक है, ओएनजीसी हो गई, ये इस तरह की जितनी भी, भारत पेट्रोलियम हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, ठीक है। तो ये जितनी भी ऐसी कंपनीज हैं, इन कंपनीज की जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, इनकी जो रिपोर्ट्स है उसको ये कमेटी डिस्कस करती है और फिर जो है इसको पार्लियामेंट में रखती है। इस कमेटी के अंदर 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। इसका चेयरमैन भी जो है लोकसभा स्पीकर ही चुनता है, और ये जो है इसके मेंबर्स दोनों हाउसेस से होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी, पैक जिसको बोलते हैं, ये 1921 में इसका फॉर्मेशन हुआ। दे एग्जामाइन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द सीएजी। जो सीएजी की कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल जो हर साल एक रिपोर्ट करता है, उसकी रिपोर्ट्स जो डिफरेंट सेगमेंट्स पे रिपोर्ट, डिफेंस पे हो गया या मान ले बैंकिंग के ऊपर हो गया, या किसी भी सेगमेंट में जो कैग रिपोर्ट जमा कराती है, उस पूरी कैग की रिपोर्ट का ये एक तरह से एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। इसमें भी 22 मेंबर्स होते हैं लोकसभा से, टोटल मेंबर्स 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, दोनों हाउस से मेंबर चुने जाते हैं, एंड द चेयरमैन अपॉइंट्स बाय द स्पीकर फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी, ठीक है। अब ये कुछ और इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं, ठीक है। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं थोड़ा सा एक बार जनरली बता देता हूं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक होती है कमिटी टू इंक्वायरी, इसका नेचर ही है इंक्वायर करना। तो ये होती है कमेटी ऑफ पिटिशंस एंड प्रिविलेजेस। जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, इनके पास क्या क्या प्रिविलेजेस होते हैं। अगर मान लो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो है वो प्रिविलेज ब्रीच हुआ है, तो वो इस कमेटी के पास जाता है, पिटिशन एंड प्रिविलेज कमेटी के पास। एथिक्स कमेटी, कैसे सेट ऑफ रूल्स रखना है, ठीक है, जो हमें किस तरह से जो है डिसिप्लिन रहना है और या क्या क्या काम करने हैं, वो एथिक्स कमेटी देखती है। इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, ठीक है, इसके अंदर भी 15 मेंबर होते हैं। फिर उसके बाद कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल। पार्लियामेंट जो हाउस होता है उसको स्क्रूटनाइज करने के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए कुछ कमिटीज होती हैं, ठीक है। जैसे
कमिटी ऑफ गवर्नमेंट एश्योरेंस सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन पेपर लेड ऑन द टेबल, ठीक है, जो भी पेपर टेबल पे लेड होते हैं, जब आपने देखा होगा जब कोई एमपी बोल रहा होता है तो जब कुछ गलत बोल देता है या कोई स्कीम लेना होता है तो वो ये लोग बोलते हैं कि भाई पेपर जो है आप टेबल पर रख दीजिए, ठीक है, तो वो इस कमेटी का काम है। वेलफेयर ऑफ SC ST एम्पावरमेंट, ज्वाइंट कमेटी ऑफ ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एंटी डिफेक्शन वाला जो था। फिर उसके बाद एक होती है हाउस कीपिंग कमिटीज, सर्विस कमिटीज, जनरल पर्पस कमेटी, हाउस कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी, ज्वाइंट कमिटीज, ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, देयर आर 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज इन इंडिया राइट नाउ। 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज है, हर मिनिस्ट्री की अलग अलग होती है। केमिकल फर्टिलाइजर की अलग हो गई, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की अलग हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी अलग हो गई, रूरल डेवलपमेंट के लिए अलग हो गई, ठीक है। तो इस तरह से 24 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज है इंडिया के अंदर। और एक होती है कमिटीज रिलेटिंग टू द डे टू डे बिजनेस हाउस। इस कमेटी के जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, इसका जो चेयरमैन होता है वो हमेशा लोकसभा स्पीकर होता है। इसका जो चेयरमैन होता है वो लोकसभा स्पीकर होता है इन तीनों कमेटीज का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, लोकसभा चेयरमैन। रूल्स कमेटी, कैसे लोकसभा चलेगी, क्या क्या रूल्स एंड प्रोसीजर होंगे, क्या मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट लोकसभा को चलने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग होती है वो सारी ये कमेटी देखती है। रूल्स कमेटी, कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रिजोल्यूशन, एब्सेंस ऑफ मेंबर फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द हाउस, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या प्रोटोकॉल्स बनाने होते हैं, सबसे पावरफुल कमेटी ये होती है, कमेटी रिलेटिंग टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, ठीक है। ये आपको एक बार मैं साइड हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर एक होती है एडहॉक कमिटीज। एडहॉक कमिटीज आर द टेम्पररी कमिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। दीज कमिटीज आर यूजुअली कॉन्स्टिट्यूटेड टू कंसिडर a report on a specific bill or to inquire into a particular matter of public importance, ठीक है। और ये जैसे ये कमेटी, इनका जब काम पूरा होता है तो इनको ऑटोमेटिक डिसॉल्व कर दिया जाता है। एडहॉक कमेटी परमानेंट इन नेचर की नहीं होती। जब कोई स्पेशल, जैसे मान लो रफाइल डील का मामला था तो ये लोग कहते थे कि एक स्टैंडिंग कमेटी बनाओ, एडहॉक कमेटी बोलते हैं उसको। या जैसे बोफोर्स का मामला हुआ था तब उस टाइम पे एडहॉक कमेटी बनी थी। तो ऐसी जो कमेटी होती है, टेम्पररी कमेटी होती है, ये एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनती हैं, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस, जब अपोजिशन मेंबर्स को लगता है कि इसको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब उनको डिस्कस करना होता है उस टाइम पे ये कमिटीज बनती है। और जैसे ही ये कमिटीज का काम पूरा हो जाता है इनको ऑटोमेटिक डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है। एडहॉक कमिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, इंक्वायरी कमेटी और एडवाइजरी कमेटी। इंक्वायरी कमेटी में तो ये इंक्वायर करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करते हैं चीजों को। एडवाइजरी कमेटी में व्हेन दे वांट, they find something and I want to give advice that what should be done in a particular way, ठीक है। The principal ad hoc committee are select and joint committees on bills, railway convention committee, joint committee on food and parliament complex। आप हमेशा देखते होगे जॉइंट कमेटी हमेशा बात की जाती है कि स्टैंडिंग कमेटी बना दीजिए, ठीक है, या जॉइंट कमेटी बना दीजिए। इसमें अपोजिशन के और रूलिंग पार्टी के दोनों के मेंबर्स होते हैं ऐसी कमेटीज में। जो इंक्वायरी कमेटी होती है या जो एडवाइजरी कमेटी होती है, ऐसी कमेटीज के अंदर दोनों जो है अपोजिशन और रूलिंग पार्टीज के मेंबर होते हैं। फिर ये व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटीज। सम ऑफ द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटीज आर, ये क्या करती हैं, रिव्यूइंग एंड स्क्रूटनाइजिंग द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। ये रिव्यू करती हैं और स्क्रूटनाइज करती हैं एक एक पॉइंट को लेके गवर्नमेंट किस तरह का काम कर रही है। पार्लियामेंट्री कमिटीज एग्जामाइन द पॉलिसीज। पार्लियामेंट्री कमेटी एग्जामाइन करती हैं पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम को ये क्रिटिसाइज भी करती हैं, स्क्रूटनाइज भी करती हैं, रिव्यू भी करती हैं एंड मेक रिकमेंडेशंस टू इंप्रूव। कि अगर कोई पॉलिसी में कुछ मान लीजिए कुछ कमी बेसी रह जाती है तो उस स्थिति के अंदर अपोजिशन हमेशा डिमांड करता है कि आप इसको पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर भेजिए। क्यों? जब उसको पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा जाएगा तो उस टाइम पे उस पॉलिसी के ऊपर रिव्यू होगा और स्क्रूटनाइज होगा, और फिर अगर कोई चीज मान लो उन्हें रिकमेंड करना होगा तो उस कमेटी के माध्यम से वो उसको रिकमेंड कर देंगे। गॉट माई पॉइंट? फिर पावर टू समन द मिनिस्टर एंड ऑफिशियल, ये इतनी पावरफुल होती हैं जब ये स्क्रूटनाइज और रिव्यू कर रहे होते हैं इस चीज को, तो इनके पास पावर होता है टू कॉल द मिनिस्टर एंड ऑफिशियल टू टेस्टिफाई बिफोर देम, दैट टू आस्क देम क्वेश्चंस अबाउट देयर पॉलिसीज एंड एक्शंस, कि आपने ये एक्शन क्यों लिया, आपने ये पॉलिसी क्यों बनाई, आपका
क्या मोटिव था इस पॉलिसी को बनाने के लिए। तो ये इतनी पावरफुल कमिटीज होती हैं, ये मिनिस्टर को या उसके ऑफिशियल्स को भी बुला सकती हैं फॉर ए इंक्वायरी, एग्जामिन करती हैं बिल्स को, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमिटीज प्ले अ की रोल इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस बाय एग्जामिनिंग रिव्यूइंग बिल्स बिफोर दे आर पास्ड इनटू द लॉ। ये क्या करती हैं, एग्जामाइन करती हैं बिल्स को पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। जब वो लॉ बनने से पहले इन सेलेक्ट कमिटीज में ये बिल जाता है, जहां पे इनको क्रिटिकली इवेल्युएट किया जाता है कि वेदर दिस लॉ टेस्टिफाइज और नॉट। जब वो कंप्लीट उसमें सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, उसके बाद फिर उसको लॉ बनाते हैं टू मेक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस कमेटी का बनाने का, ये जितनी भी कमिटीज होती हैं इनका मेन कॉन्सेप्ट या जो मुद्दा है वो यही होता है, ये रिकमेंड करती हैं, ठीक है, कि आप इन चीजों को इनके अंदर चेंजेस कर दीजिए या ये चीज जो है इसके अंदर ऐड कर दीजिए, ठीक है। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी। सिग्निफिकेंस क्या है इन पार्लियामेंट्री कमिटी का। देयर देखिए, एक्सपर्टाइज एंड स्पेशलाइजेशन। Parliamentary committees are made up of the members of the parliament who have a specific expertise and knowledge in a particular area such as finance, foreign affairs, health से related मान लो कोई कमेटी बनी तो हो सकता है कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो डॉक्टर रहा हो उसको डाल देंगे। फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड कोई है तो मान लो जिसको फॉरेन अफेयर्स में नॉलेज है, शशि थरूर टाइप्स, उसको डाल देंगे, ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड मान लो कोई किसी को है तो मान लो फाइनेंस से रिलेटेड कोई कमेटी बनी तो उसको मान लो उसमें जो जिसको फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज है या कोई एक्स फाइनेंस मिनिस्टर है उनको डाल देंगे। तो जो इस एक्चुअली इन कमिटीज का बेसिक जो एजेंडा ये है वो यही होता है कि एक्सपर्ट लोगों को कमिटी में लेके आते हैं, फिर वो क्रिटिकली उसको इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है, एनालाइज करते हैं, फिर उसके अंदर रिकमेंड करके फिर वो रिपोर्ट भेजते हैं आगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक्सपर्टाइज और स्पेशलाइजेशन जो है वो सबसे नंबर 1 पॉइंट है सिग्निफिकेंस के अंदर पार्लियामेंट्री कमिटीज की। फिर उसके बाद द कमिटी ऑन हेल्थ फैमिली वेलफेयर, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। चेक्स एंड बैलेंस बनता है, ठीक है। दीज कमिटी एक्ट एज अ चेक ऑन द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच बाय द स्क्रूटनाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शंस, ठीक है। चेक्स एंड बैलेंस है, ये नहीं कि आप जो है एग्जीक्यूटिव जो है रूलिंग पार्टी जो है उसकी मन मर्जी आई वैसा कोई भी पॉलिसी बना दी, कोई भी कानून बना दिया। तो ये जो कमिटीज हैं ये अपोजिशन लीडर को एक इस तरह का हथियार देती हैं कि आप चेक कर सकते हैं, स्क्रूटनाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं अगर कोई चीज गलत है तो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है चेक्स एंड बैलेंस। फिर उसके बाद स्ट्रेंथन द लॉज। ओवर द इयर्स द कमिटी हैव इमेंसली कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग द लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। फिर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कमिटी ऑन फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स बनी थी, उसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दिया था 1986 में। फिर उसके बाद ये इसको अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसके बाद दोबारा संशोधन हुआ 19 में, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 वाला था वो एक पार्लियामेंट में कमिटी बनी थी, उसी के माध्यम से वो मिला था, ठीक है। बजटरी ओवरसाइट, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया इंडिया में अभी 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज हैं। हर मिनिस्ट्री की ऑन एन एवरेज हर मिनिस्ट्री के पास खुद की एक डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज होती है, वो एग्जामाइन करती है बजट को कि हमारी मिनिस्ट्री को कितना बजट मिला है, कितना चाहिए, क्या क्या हमारे आने वाले टाइम में एक्शंस होने वाले हैं, कैसे लोग हम जो है पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगे। गॉट माई पॉइंट। एंड दिस कमिटीज मेक अ फोरम फॉर बिल्डिंग द consensus. Committees provide a forum for building consensus across the political parties. Committees to have a closed door meetings which allow them to discuss issues freely, arrive at a मतलब सब लोग मिलके आपस में मिल जोड़ के जब सब लोगों की सहमति हो जाती है एक क्लोज डोर रूम में मीटिंग करते हैं, ठीक है, कि भाई डिपार्टमेंट रिलेटेड ये एक इस तरह से एक फॉरम है ये पार्लियामेंट्री कमेटी जहां पे विपक्ष के लोग और पक्ष के लोग बैठ के आपस में किसी भी चीज को क्रिटिकली इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से ये स्पेस प्रोवाइडर है अपनी बात रखने का। पार्लियामेंट्री जो कमिटीज होती हैं बेसिकली ये एक स्पेस प्रोवाइडर है जहां पे जो है सरकार की बनाई हुई पॉलिसीज को जो है हम जो स्क्रूटनाइज कर सकते हैं और जिसके ऊपर हम जो है क्रिटिकली इवेल्युएट कर सकते हैं। गॉट माई पॉइंट। और दूसरी बात है पब्लिक एंगेजमेंट भी होता है। कमिटीज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी मेंबर्स ऑफ द पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन इंगेज डायरेक्टली विद द पार्लियामेंट, ठीक है, एंड कंट्रीब्यूट टू द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। कई बार हमने देखा है कई केसेस में जो अगर कुछ पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कोई कमेटी है तो जो पब्लिक उस फील्ड से रिलेटेड अगर कोई पब्लिक डिग्निटरी है उनको भी बुलाया जाता है, ठीक है। और ऐसे जो कमिटीज हैं उनके अंदर उनके भी वैल्यू जो विचार हैं वो सुने जाते हैं और वो वैल्यू एडिशन का काम करते हैं। गॉट माई पॉइंट।
व्हाट आर द इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द पार्लियामेंट्री कमेटी, कौन कौन से चैलेंजेस और इश्यूज हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज के. There are several issues, challenges that parliamentary committees in India face. Some of these are as follows. एक तो रिसोर्स नहीं है, टेक्निकल सपोर्ट अवेलेबल नहीं होता है कमिटीज को, ठीक है. शेड्यूल, कंटिन्यूअस कोई शेड्यूल नहीं है मीटिंग्स का कि इतने इतने टाइम पे होती रहेंगी, ठीक है. तो टेक्निकल क्रंच है एक तो सबसे बड़ी बात है. फाइनेंशियल क्रंच है. फिर उसके बाद क्या है, नेशनल कमीशन ऑफ द रिव्यू ऑफ वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में हाईलाइटेड द लैक ऑफ रिसर्च एंड सपोर्ट स्पेशलिस्ट एडवाइजर्स विद द डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज. नेशनल कमीशन रिव्यू वर्किंग जो कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी बनी थी उसने ये पाया कि जो डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी हैं जो भी 24 मंत्रालयों की मिला के, उनके पास ना तो कोई रिसर्च सपोर्ट है ना कोई टेक्निकल सपोर्ट है, ठीक है. तो ये इस तरह की जो फाइंडिंग्स होती हैं वो भी एक चिंताजनक विषय है इन स्टैंडिंग कमिटीज के लिए या इन पार्लियामेंट्री कमिटीज. लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है. सम ऑफ द कमिटीज फेस प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड अदर इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स विच कैन कॉम्प्रोमाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ द इम्पार्शियलिटी, ठीक है. मान लीजिए कोई कमेटी है जिसमें रूलिंग पावर पार्टी के लोग ज्यादा हैं, ठीक है, एंड गवर्नमेंट का प्रेशर है कि भाई, तो इंडिपेंडेंस भी जो है, या प्रेशर ग्रुप या पीयर ग्रुप्स जो हैं वो कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है उसके अंदर जो है प्रेशर बिल्डअप करके जो है वो इंडिपेंडेंस को जो है दे कैन डिस्टर्ब. फिर लिमिटेड पावर्स होते हैं. दीज कमिटीज डू नॉट हैव द पावर टू इन्फोर्स देयर रिकमेंडेशन और टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट दोज हु डू नॉट कंप्लाई. ये सिर्फ एक तरह से रिकमेंडरी बॉडी है. मतलब अगर आप इन कमिटीज ने कोई रिकमेंडेशन दिया, जरूरी नहीं है कि सरकार जो है उसको मानेगी. दूसरी सबसे बड़ी बात है, इनके पास पावर नहीं है कि किसी को पनिश करें अगर इनको इनकी फाइंडिंग में आए कि इसने गलत डिसीजन लिया है, ठीक है. कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकते हैं ये लोग, ठीक है. दे डू नॉट, actually they are powerless. What my point, their only nature is recommendatory. Limited participation है. Some committees struggle to act sufficient participation from the MPs which can be limit their effectiveness. During 2009 to 2014 only 49% of the members were present for the meetings of the departmental related standing committees. 2009 से लेके 2014 तक सिर्फ 49% मेंबर्स थे जो कि प्रेजेंट रहते थे डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज के अंदर. तो ये शो करता है कि लिमिटेशन ऑफ पार्टिसिपेशन कितना है, ठीक है. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पुअर नंबर ऑफ सिटिंग, ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं. ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन ऑफ द 17th लोकसभा, पार्लियामेंट सेट ओनली फॉर 37 days. इन द लास्ट 10 years पार्लियामेंट मेट फॉर 67 days per year ऑन एन एवरेज. तो आप सोचो 365 दिन में जिन लोगों को हमें कानून बनाना है, जिसको पूरा देश चलाना होता है, वो सिर्फ 67 डेज बैठते हैं पार्लियामेंट के अंदर. तो आप इन लोगों की सीरियसनेस का अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है. फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पार्लियामेंट्री कमिटीज कैन बी सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड प्रेशर फ्रॉम द पार्टी लीडर्स टू अदर पावरफुल ग्रुप्स. दिस कैन अंडरमाइन द कमिटीज इंडिपेंडेंस एंड एबिलिटी टू कैरी आउट वर्क ऑब्जेक्टिवली. अगर मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ये कमिटीज अगर इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेंगी, इनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा, तो जो ऑब्जेक्टिव जो इनका है, जो काम करने का पर्पस है, वो जो है ये फुलफिल नहीं करेंगे, ठीक है. तो इनका इम्पार्शियल और इनका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है. फिर इनके पास लैक ऑफ डिटेल्ड स्क्रूटनी, पार्लियामेंट्री कमिटीज लैक द डिटेल्ड स्क्रूटनी, फेस द चैलेंजेस थ्रू आउट देयर इफेक्टिव स्क्रूटनी, ठीक है. Only a limited proportion of the budget is usually discussed on the floor of the house. In the 16th Lok Sabha, only 17% of the budget was discussed in the house. 16वीं लोकसभा में बजट का 100 में से 17% बात डिस्कस किया गया, ठीक है. 80% gone. Still again you can have an idea of the seriousness of our respected parliamentarians. अब इसके बाद में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे पार्लियामेंट्री कमिटी से रिलेटेड. पहला क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन द पब्लिक अकाउंट. पब्लिक अकाउंट में कितना कमिटी से रिलेटेड है? कंसिस्ट नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा. कंसिस्ट नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा. स्क्रूटनाइज अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, करेक्ट है. एग्जामाइन रिपोर्ट ऑफ द कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है. द करेक्ट आंसर वुड बी बी. देखो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा सही नहीं लिखा है इसमें क्वेश्चन में.
इसका ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं, जिसका टेन्योर 1 ईयर का होता है, ठीक है। और लोकसभा का जो चेयरमैन होता है या स्पीकर होता है वो इसके चेयरमैन को अपॉइंट करता है, ठीक है, या इलेक्ट करता है, जो भी, ठीक है। फिर द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंप्राइजेस ऑफ द मेंबर्स, जो कमिटी है पार्लियामेंट्री ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेज कंप्राइज फ्रॉम टोटल, उस कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, दैट इज 30 मेंबर्स होते हैं, 30, 20 लोकसभा से 10 फ्रॉम द राज्यसभा, 20 फ्रॉम द लोकसभा 20 फ्रॉम द राज्यसभा, रॉन्ग 30, तो ठीक है, दैट विल बी द करेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टैंडिंग कमिटीज, इनमें से स्टैंडिंग कमिटीज कौन सी है, आपको मैंने बताया था डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, ठीक है। तो इन कमिटीज के अंदर से जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग कमिटीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं, ये आपको आइडिया है। ज्वाइंट कमिटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। जनरल पर्पस कमेटी, ठीक है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। रेलवे कन्वेंशन कमेटी, ये गलत है, इसमें ऑड वन आउट, द करेक्ट आंसर वुड बी 1 2 3। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडहॉक कमिटीज, जो सिर्फ स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती है, मैंने आपको बताया था, जिनका परमानेंट इन नेचर नहीं होता है, जैसे ही जब काम कंप्लीट हो जाएगा, जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा उसको डिसॉल्व कर देंगे। तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज आर द एडहॉक, कमिटी ऑन फूड मैनेजमेंट इन पार्लियामेंट हाउस एंड कॉम्प्लेक्स, जॉइंट कमिटीज ऑन सिक्योरिटी इन द पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, जनरल पर्पस कमिटीज, joint committee on salaries and allowance of the members. So the correct answer would be committee on food management, ad hoc committee हो गई, joint committee on security of the parliament हो गया, ठीक है। So the correct answer would be joint committee on salary allowance, ये भी हो गई, ad hoc committee 1 2, ठीक है। Fourth would be not, no, the correct answer would be C 1 and 2. The correct answer would be C 1 and 2 because these are for the special purpose. ये तो जनरल पर्पस कमेटी, ये तो एडॉक कमेटी नहीं होती, है तो परमानेंट इन नेचर की है। ज्वाइंट कमेटी सैलरी अलाउंस, ये भी जो है परमानेंट इन नेचर की है, तो करेक्ट आंसर वुड बी सी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग द कंसल्टेटिव कमिटीज। कंसल्टेटिव कमिटीज आर नॉट अटैच टू द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स, कंसल्टेटिव कमिटीज होती हैं वो अटैच नहीं होती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के। दूसरा ऑप्शन है, क्वेश्चन है, ऑप्शन है कि दीज कमिटीज आर कंस्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दीज कमिटीज आर कंस्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो करेक्ट आंसर वुड बी 2, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द पार्लियामेंट्री कमिटीज, ठीक है। कीप रिवाइजिंग, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।